students, all of you are welcomed in your biology class and we are studying chapter Why Do We Fall Ill. In our chapter we have talked about the various diseases and what are their means of spread. Now in our today's class we will be talking about principles of prevention. So there are two ways by which a disease can be prevented. That is, first is the general ways and the second one is specific ways. See why it is better to have prevention than its treatment. There are various causes. We have talked about the various types of infectious diseases and there are some limitations related to these diseases also. What are these limitations? Suppose a person gets suffered from a disease, it may be that some of its body functions may get damaged and they will never recover. Second is that if the treatment is given to the person, there may be the chances that it may take some time for the diseased person to be recovered. And third is that if a person is suffering from the infectious disease, that disease can spread from that person to the healthy one, means that person can act as a source for the spread of the disease. So these are the various three limitations जिनके लिए क्या ज़रूरी है कि डिजीज़ को क्योर करने से बढ़िया क्या किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए. फर्स्ट रीज़न इज़ कि हो सकता है बीमारी से उसके कुछ बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाएं. सेकंड कि हो सकता है बीमार पर्सन को ठीक होने में टाइम लग जाए. एंड द थर्ड इज़ दैट पर्सन कैन एक्ट एज द सोर्स की यानी उससे जो डिजीज़ है दैट कैन स्प्रेड टू द अदर पर्सन्स ऑल्सो. सो दीज आर द वेरियस लिमिटेशंस related to the infectious diseases. So what is necessary? That we should prevent the diseases and we should be free from the diseases, and it is necessary to be free of the diseases. And so this proverb is exactly right, that prevention is better than cure. Now how can we prevent ourselves from the diseases? There are two ways. We have just talked that there are two ways to be prevented from the disease. One is the general way and the other one is the specific way. So we will talk about the prevention methods in detail. First is general way. As you know that many of the infectious diseases spread by the infectious agents, that is microbes, means diseases can spread through the fungi, through the bacteria or protozoa, means and they can be spread by the insects also, like mosquito. Some of the diseases spread through air, some may spread through water, and some may spread by the bite of mosquitoes. So what is necessary? If the diseases are spreading by any means, we should get the means well treated, यानी जिन जिन तरीक़ों से बीमारी फैल रही है उन तरीक़ों को जो है हम क्या करें, उनका सही ट्रीटमेंट यानी उनको सही से उनका यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ डिजीज़ इज़ स्प्रेडिंग by taking contaminated water, so what should be done? That water should be purified, and that purification will lead to the killing of microbes and the disease will not spread, which is caused by the use of contaminated water. अगर हम contaminated water पी रहे हैं, polluted water पी रहे हैं, सो क्या करना चाहिए इस डिज़ीज़ से बचने के लिए कि हमें जो वाटर है वो प्यूरिफाइड पीना चाहिए. देयर शुड बी नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट वाटर. Then second example, if we talk about the disease mosquito, which is caused by the bite of, if we talk about the disease malaria, which is caused by the bite of mosquito. So what should be done? There should be no breeding grounds for the mosquitoes, and for that public hygiene is necessary कि अगर आसपास जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, if they are well covered, अगर वहाँ पर कोई collected water नहीं है, there will be no mosquito breeding grounds. And if there will be no breeding grounds for mosquitoes, कोई egg lay नहीं कर पाएंगे mosquitoes, there will be no larva, no new mosquitoes will that will get birth, and in this way this malaria disease can be prevented. So these are the various examples. In the same way, if we talk about the airborne diseases, if the diseases are spreading from the inhalation of
कॉन्टामिनेटेड एयर की, एयर के अंदर कोई जो है बैक्टीरिया है या जो वायरस हैं और अगर हम उस एयर को इनहेल कर रहे हैं तो फिर डिजीज़ स्प्रेड हो रही है। वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए सो दैट वी कैन इनहेल फ्रेश एयर एंड नॉट द कॉन्टामिनेटेड वन। सो पब्लिक हाइजीन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक हाइजीन मीन्स हम जिस टू हाइजीनिक कैटेगरीज़ की हम बात करते हैं, वन इज़ पर्सनल हाइजीन एंड द सेकेंड वन इज़ पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स टू कीप आवर बॉडी क्लीन, to use clean clothes, to use personal articles personally, कि अपनी जो चीज़ें हैं पर्सनल आर्टिकल्स फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्ब हैं या बाकी जो चीज़ें हैं टॉवल्स वगैरह हैं, दे शुड बी पर्सनल वंस। तो इस तरह से हम जो है अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पब्लिक हाइजीन, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो लोकेलिटी है, दैट शुड बी क्लीन। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच वेरियस डिजीज़ स्प्रेड। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कुछ इश्यूज़ भी हैं जो कि डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के हम कांटेक्ट में आते हैं, वेदर दे आर लिविंग इन एयर और इन वाटर और इन द सॉइल। सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट द पोल्यूटेड एयर, a person is suffering from the cold or cough, what will happen? If that student is coughing or sneezing in the class, it is likely to happen that the children who are sitting beside, they may get exposed of with that contaminated air, और अगर वो उस contaminated air को inhale करते हैं तो हो सकता है वो ill हो जाएं। But you might have observed that in a class many of the students are sitting, but not all the students get that disease. What is the reason behind that? This is because of the immunity system of that student. What is the immunity? Immunity is the ability to fight against diseases. हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है जो वर्क करता है, जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स, जो माइक्रोब्स एंटर करते हैं, उन्हें वो किल कर देता है। And we have special cells for killing these microbes, and these cells are called as WBCs or lymphocytes. These cells, what they do, they kill the microorganisms entering into the body, and if they are successful, we do not actually come down with any disease. Means कि अगर हमारी WBC सही से वर्क करती हैं, if they are able to kill all the microorganisms which are harmful for the body, अगर वो उनको किल कर पाते हैं, देन वी विल नॉट गेट एनी ऑफ द डिजीज़, हमें बीमारी नहीं होती। सो इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यून सेल्स जो हैं, देयर फंक्शन इज़ टू किल ऑफ द इन्फेक्शन। जब वो ज़्यादा फैले उससे पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इम्यूनिटी सिस्टम क्या कर देता है, किल कर देता है। एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व कि बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं, एंड इफ़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिज़ीज़, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिज़ीज़ मीन्स कि अगर वो डिज़ीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉडी में स्प्रेड नहीं हुई है, तो दैट कैन बी डन बाय द माइनर, यानी लोअर लेवल पर ही हम उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उस डिज़ीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बट व्हाट हैपन्स when the body comes in contact with large number of microorganisms? So at that time there is the need of some treatment. So one way of looking at severe infectious disease is that it represents a lack of success of the immunity system. यानी अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इन आर, यानी हमारी जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शंस हैं, वेरियस सिस्टम्स हैं, इन द सेम वे इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो वर्क्स, एंड हमें हमारी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे सेफ रखता है। सो दीज आर द जनरल वेज कि अगर इफ़ द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय एयर, so we can keep a distance from the infected person. If the disease is caused by infected or polluted water, we can take purified water, and we can get rid of the mosquitoes also. So these are the general ways of preventing infections. So what about the specific ways? There are specific ways, and which is the peculiar property of the immunity system. How our immunity system works? आप लोगों ने स्मॉल पॉक्स एक डिज़ीज़ के बारे में सुना होगा
These days there is no smallpox anywhere in the world. बट एज रिसेंटली एज 100 years ago, लेकिन हम बहुत साल पहले की अगर बात करते हैं, देन दिस स्मॉल पॉक्स स्प्रेड एज एन एपिडेमिक, और जो है उसने बहुत सारे वर्ल्ड के एरिया को कवर किया. मैनी ऑफ द पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक. अगर इस तरह की एपिडेमिक कंडीशन आ जाती है, देन व्हाट शुड बी डन? In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease, since they were afraid of catching the disease. Just like corona, we can take the example of corona. It is an epidemic, and what the people are doing, they are afraid of coming near to that infected person. कि जो पर्सन कोरोना से सफरिंग है उसके कांटेक्ट में आने से हर कोई क्या करता है, डरता है. द सेम थिंग हैपेंड व्हेन देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स. बट वहीं पर जब इफ़ वी टॉक अबाउट द स्मॉल पॉक्स, तो वहाँ पर कुछ लोगों को क्या ऑब्ज़र्व किया गया कि सम ऑफ द ग्रुप सम या फ्यू ग्रुप ऑफ द पीपल वर नॉट अफ्रेड ऑफ दिस डिजीज़. वो पीपल कौन थे? जो उन स्मॉल पॉक्स से सफरिंग लोगों की क्या कर रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे. और उनको कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्मॉल पॉक्स हो चुका था, फिर भी वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गए. In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. हम इस पैराग्राफ से किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो स्मॉल पॉक्स से सफ़र हुए और फिर वो रिकवर कर गए, वो पीपल जो हैं दे वर हेल्पिंग इन क्योरिंग द पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स. यानी उन लोगों के पास ऐसा क्या आ गया कि वो एक बार स्मॉल पॉक्स से सफरिंग होने के बाद उस बीमारी के इलाज करने के लिए हेल्प करने लगे. इन एक्चुअल क्या हुआ, बिकॉज हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसने क्या किया, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, स्मॉल पॉक्स के कॉजेटिव एजेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया. इट मीन्स हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, फर्स्टली इट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, और उसके बाद उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है एंड देन रिमेंबर्स इट. और अगर कभी फ्यूचर में इफ द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू द बॉडी, व्हाट आवर इम्यूनिटी सिस्टम डज, कि वो उनको जो है एलिमिनेट कर देता है. सो दिस इज़ द इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि किसके साथ रिलेटेड है, मेमोरी के साथ रिलेटेड है. एंड इन दिस वे इन्फेक्शन इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी क्विकली देन द फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में उसने क्या कर लिया, क्विकली उस डिज़ीज़ को रिमूव कर दिया. एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और प्रिंसिपल ऑफ आर इम्यूनिटी सिस्टम. अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की, यहाँ पर एडवर्ड जेनर की बात कर रखी है. एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स की जो है इसको वैक्सीन को डिस्कवर किया. So this is the history about the immunization. This, let us read that traditional Indian and Chinese medicinal system sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people. अगर हम बात करें मेडिसिनल सिस्टम की, इंडिया के और चाइनीज़ की, व्हाट द पीपल यूज़ टू डू, कि जो लोग स्मॉल पॉक्स से सफरिंग थे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स में स्मॉल लेजन्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो पीपल क्या करते थे, स्किन का जो क्रस्ट, स्किन का जो लेयर रिमूव हो रहा था, उसे अपनी हेल्दी जो लोग थे वो रब कर लेते थे. उनका क्या मानना था कि अगर वो इस तरह करते हैं तो उनकी बॉडी में वो डिज़ीज़ नहीं होगी. फेमसली 2 centuries एगो फिर एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने जो इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो मिल्क मेड, यानी जो लोग काउस की केयरिंग कर रहे थे और जो काउस जो काउपॉक्स से सफ़र हो गई थी, उन मिल्क मेड्स को ये जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? जब पूरे वर्ल्ड के अंदर एपिडेमिक स्प्रेड हुई थी स्मॉल पॉक्स, देन एट दैट टाइम ऑल्सो द पीपल हु वर केयरिंग ऑफ द काउज़, जो मिल्क मेड्स थे, जो गायों की देखभाल कर रहे थे, जिनको कभी काउ पॉक्स हुआ होगा काउस को, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. जेनर ने इसी का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की और उन्होंने क्या देखा कि दोज पीपल वर रेजिस्टेंट टू द स्मॉल पॉक्स. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काउ पॉक्स का जो वायरस था दैट इज़ सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स, एंड दैट्स वाई फिर एक वैक्सीन डेवलप की गई. एंड व्हाट इज़ वैक्सीन नाउ एंड व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? वी आर टॉकिंग अबाउट द, ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ी.
Now we were talking about the specific ways of prevention of diseases. Specific ways में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए हमारी बॉडी में वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. वैक्सीन्स क्या हैं? Vaccines may killed or weakened microorganisms. They are introduced into the body. Now what will happen when these killed or weakened microorganisms enter in our body? Our immunity system becomes active. वो जो है सेल्स की ड्यूटी लगा देता है लिम्फोसाइट्स की कि आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं एंड यू हैव टू किल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं, हमारी WBCs वाइट ब्लड सेल्स, वो उन्हें किल कर देती हैं. Yes beta, for 9th standard you might have studied about the blood. मैं आप लोगों को WBCs क्लियर कर देती हूँ. हमारे ब्लड में सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, देन वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें मैं क्या बोल रही हूँ, WBCs. ये लिम्फोसाइट्स भी कहलाती हैं. और WBCs का क्या फंक्शन है कि जब भी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो ये उनको किल कर देते हैं. सो इन दिस वे क्या होगा, जब वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन की हम बात करते हैं. पोलियो डिजीज़ को के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उनको वीक फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. अब बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए सिरिंज से यानी इंजेक्शन से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ड्रॉप्स से भी. पोलियो जो है वो ड्रॉप्स से इंट्रोड्यूस किए जाता है उसका वैक्सीन. अब क्या होगा हमारी बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे जो बहुत वीक फॉर्म में है, देन द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विल बिकम एक्टिवेटेड एंड इट विल किल दोज वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट विल रिमेंबर. इम्यूनिटी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि वो याद रख लेता है कि इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने पर उस इम्यूनिटी सिस्टम ने उन सेल्स को डिप्यूट किया था और उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया था. एंड दिस इज़ द बेस फॉर वैक्सीन. यही जो है बेस है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम याद रख लेगा. और रियलिटी में वेन एवर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर, आवर इम्यूनिटी सिस्टम नाउ इज़ स्ट्रांगली रेडी टू किल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और हमारी बॉडी एक एक्सटेंट तक उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है एंड वी आर सेफ. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. और अगर हम जनरली इसे हम कहें इम्यूनिटी सिस्टम को, तो ये एक तरह का बी फूल करने का, फूल बनाने का तरीका है. कैसे मूर्ख बनाया कि जब वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कराए, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेटेड हो गया और अब वो याद रख लेगा. और जब रियलिटी में वो एंटर करेंगे तो अब वो और स्ट्रांगली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज द fooling system also. Immunity system can also be called as like this. Now in the market various vaccines are available for many of the diseases, and for example vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio and many others. Now to get vaccinated, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल हॉस्पिटल्स में के अंदर, ताकि जो है पीपल इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो डिजीज़ कॉज हो रही हैं उनसे सेफ रहें. एंड दीज प्रोग्राम्स which are promoting the vaccinations are known as immunizations. And you might have heard in the TVs also, in the newspapers also, that various vaccines are available in the market for many of the diseases. Some hepatitis viruses which cause jaundice, जो कि वाटर से कॉज होती है डिजीज़, and for that also this vaccines are available in the market for hepatitis A also. But the majority of the children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. This is because they are exposed to the virus through water. देखिए बेटा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है जब एक न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, सिविल हॉस्पिटल्स एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं जिसमें वेरियस जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए वेरियस वैक्सीन्स का टाइम मेंशन होता है कि 1 डे, देन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, दीज आर द डिफरेंट ड्यूरेशंस जिस पर उन्हें डिफरेंट जो हैं वैक्सीन्स जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, सो दैट दे मे गेट रिड ऑफ ऑल द डिजीज़ेस.